Good morning, everyone. Today we are going to study various popular notions about psychology. Psychology is comparatively a very new subject, so there are various beliefs held by people about psychology. Psychology follows this, psychology follows that, some of which are true and some of which are not true. So today we are going to explore which part about psychology is true and which part that people say is not true. So let us start. डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड कॉमन सेंस सी लोग कुछ कुछ लोग ये बिलीव करते हैं दैट साइकोलॉजी इज नॉट एक्चुअली अ साइंस. इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस थिंग्स जो सबको ही पता होती है, बट इट इज नॉट ट्रू. साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बहुत इंटेंसिव रिसर्च, whereas common sense is something that is widely believed in, and because something is widely believed doesn't make it true. ठीक है, मतलब you might. Let us start with this example. देखो, कॉमन सेंस थ्योरी जनरली ये बिलीव करती है कि वेन एवर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन आर स्टडीज, वी शुड स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और फिर वी कैन easily do the difficult questions. So this is what common sense suggests. But by a study by Dweck, this study proved that that is not true. When we face too easy problems, we are more likely to give up. मतलब अगर हम सिर्फ easy maths problems करते रहे, तो जब भी कोई difficult problems आती है, we are more likely to give up. Whereas जिन लोगों ने बहुत easy और difficult problem करी होती है, they're more likely to work hard to achieve their goals. So that is where psychology proves common sense wrong. I'll be using common sense theory, word common sense theory quite a lot in next one or two slides. But common sense theory कोई अलग से theory नहीं है. Common sense theory मतलब वो beliefs जो लोगों ने generally widely मान रखे हैं. Okay. Another example is common sense theory generally ये believe करती है कि मतलब suppose we learn something. अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं and suddenly we go to our sleep. हम सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते we get to our sleep, हम सो जाते हैं. तो कॉमन सेंस थ्योरी ऑब्वियसली यही कहती है कि we won't remember what we studied last. But psychology proves otherwise. It states that when we sleep after we learn, तो हमारे दिमाग में कंसोलिडेशन हो जाता है जो भी हम लर्न करते हैं उसका. मतलब कंसोलिडेट्स, हमारी जो मेमोरीज होती है वो ज़्यादा अच्छे से फॉर्म हो जाती है. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स मोर एक्यूरेटली. Another example is when we try to study, we do it by our full focus, of course, and we sit for hours maybe. This is what common sense propose, that when you're studying you should, मतलब जो भी हम काम करते हैं एक ही बार में करके फिर उठें, otherwise ध्यान भटक जाता है. ठीक है, but psychology proves otherwise. It says that you are able to learn and remember more effectively if you do your studies in spaces. That is, थोड़ा सा पढ़ाई करी, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर थोड़ी और दूसरा टॉपिक कवर किया. तो साइकोलॉजी प्रूव्स दैट कि स्पेस लर्निंग इज मोर beneficial to learn and remember something. Now, not too long ago, it was believed that in some cultures, men are more intelligent than women. These theories or propositions are also not true. Research या empirical studies are studies that are evidence based. So ऐसी कोई study नहीं हुई है अभी तक जो ये prove कर पाए कि men are more intelligent than women or women are more intelligent than men. So if there is no study, we cannot say it confidently. So that is another myth or thing that we as young psychologists should not believe in. Common sense also suggests that people are not able to perform in front of large audience. मतलब अगर ऑडियंस का साइज जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतने ज़्यादा हम नर्वस हो जाते हैं. बट साइकोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन अ टास्क, सपोज you have to sing in front of a large audience in auditorium, but you're also confident about it and you're enthusiastic about it. So लोगों को देख के तुम्हारा जो effort है या फिर जो performance है वो और improve हो जाता है instead of demoting. So this is where psychology proves common sense wrong again. So there are various examples where
common sense theories are not true. They look very true, but they are not. So now that you are studying psychology, I want you to understand that there is a difference between common sense and psychology, and you should not believe anything that you hear. Believe only the things that have a solid basis to them. Psychology predict behavior, whereas common sense explain behavior. This is also called hindsight effect. What happens is, we whenever we say a thing, suppose we said that it's going to rain today, ठीक है, we are often 50-50 about it, ठीक है, घर से निकल रहे होते हैं, we said it might rain today, I might take an umbrella with me, ठीक है, तो वी आर 50-50 अबाउट इट. बट व्हेन जब हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, मतलब सपोज हमने कहा था बारिश होगी और सच में एक्चुअली बारिश जाती है, तो वी बिकम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वी बूस्ट टू आवर फ्रेंड, अरे देखा मैंने तो कहा था. सेम गोज विद हेड एंड टेल सिचुएशन. तो सपोज वी देयर आर टू ऑप्शंस, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं हेड या फिर टेल, ठीक है, एंड सपोज वी से टेल आएगा, ठीक है, एंड टेल एक्चुअली आ जाता है, तो वी बूस्ट अबाउट इट कि देखा मैंने तो कहा ही था टेल आएगा, बट एक्चुअली इन द प्रीवियस सिचुएशन अब इतने श्योर नहीं होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हिंडसाइट फिनोमेना. हिंडसाइट का मतलब ही होता है आफ्टर द इवेंट इज डन. So this is what common sense does. Matlab it explain behaviors when they are already done, aftermath the incidents. For example, in this example of your book, suppose we have a very good friend in our neighborhood, and suddenly he moves out of town, ठीक है, we play video games together, we play various sort of games, और वो suddenly चला जाता है किसी और part of the city, ठीक है. So अब two things might happen in this case. First is out of sight, out of mind. जैसे ही वो टाउन लीव करता है, you get busy in your life और friends बन जाते हैं, you suddenly forget him, ठीक है. और सेकेंड सिचुएशन ये है कि the distance makes the heart grow fonder, because वो आपसे दूर चला जाता है, तो you start to miss him more, ठीक है. अब दोनों सिचुएशन होने के इक्वल चांसेस है, बट व्हाट कॉमन सेंस डज इज कि जो बिहेवियर ऑलरेडी हो जाता है, सपोज आप उसे भूल जाते हो, तो वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि हाँ दिस वॉज अ प्रोबेबल सिचुएशन जो हो सकती थी. फिर साइकोलॉजी प्रिडिक्ट द सिचुएशन. साइकोलॉजी चीज होने से पहले उस चीज को प्रिडिक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि गिवन अ टास्क, सपोज यू आर सिंगर वाला एग्जाम्पल जो था, सपोज यू आर गुड इन सिंगिंग एंड यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट सिंगिंग, तो साइकोलॉजिस्ट पहले ही कह देगा कि यू विल नॉट बी नर्वस, ठीक है. वेयर एज कॉमन सेंस उसे बाद में एक्सप्लेन करके कहेगा. Second point is common sense theory gets supported by two confirmation biasness. What is confirmation biases? Confirmation biases is when we believe in a thing. Suppose we believe that women are more chatty than men. ठीक है, so we start to notice that more often, ठीक है. We start to unconsciously notice women that are talkative more than men who are talkative. Or suppose let's take another example. Suppose we buy our new car, ठीक है, हम नई कार खरीदते हैं, ब्रीजा हमने खरीद ली. तो जैसे हम ब्रीजा खरीदते हैं, तो वी स्टार्ट टू नोटिस मोर ब्रीजा और विच एवर कार ही बॉट अराउंड. सो यू स्टार्ट टू बिलीव दैट हाँ लोगों के पास आजकल सबसे कॉमन गाड़ी जो है वो ब्रीजा है, ठीक है. सो दैट इज कंफर्मेशन बायसनेस. वॉट एवर यू बिलीव, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव, वॉट मतलब जो भी आप ओरिजिनली आपका थॉट होता है, उस चीज को आप ज्यादा नोटिस करने लगते हो, इसीलिए उस चीज में आपका थॉट और ज्यादा पक्का हो जाता है. तो दिस इज कंफर्मेशन बायसनेस. Okay. Another popular misconceptions about psychology or psychologists are psychologists only treat mad people. As I've also told you before, psychologists are not only for mad people. Any person who has a problem, मतलब जैसे कि हमें बॉडी की फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, बी इट फीवर, बी इट एनी इन्फेक्शन, वी गो टू अ डॉक्टर. वैसे ही हमारी माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. अब वो प्रॉब्लम डिप्रेशन भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है दैट वी आर नॉट एबल टू डू वेल इन आवर स्टडीज. वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारी किसी फ्रेंड से, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंड,
साइकोलॉजिस्ट कैन कंट्रोल यू, नो। मूवीज में जो होता है बहुत ज्यादा हाइप करके दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाते हैं ना हिप्नोटाइज कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, और मतलब जो साइकोलॉजिस्ट कह रहा है वो पेशेंट कर रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। Psychologist cannot control you like that. Okay, psychologist or hypnotism cannot control you like that. You need to, मतलब इनफैक्ट कोई भी बिहेवियर चेंज करने के लिए यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। मतलब आई विल बी एबल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तभी पढ़ा सकती हूँ जब आपके अंदर थोड़ी खुद की भी विलिंगनेस हो पढ़ने की, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो रिक्वायर अ लिटिल बिट विलिंगनेस फ्रॉम योर साइड। साइकोलॉजिस्ट आर ऑफन मैड देमसेल्व्स, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। लोग जनरली ये बिलीव करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज दे आर यूजुअली सराउंडेड बाय यू नो द इनसेन पीपल या मैड पीपल, दे आर ऑफन मैड देमसेल्व्स। ऐसा सच नहीं है। एक डॉक्टर जो फीवर के पेशेंट से सराउंडेड रहता है डजंट मीन कि उसको भी खुद को फीवर हो जाता है। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट एज अ डॉक्टर भी तभी ट्रीट कर सकता है अपने पेशेंट्स को व्हेन ही इज मेंटली स्टेबल। वो एक मेंटली अनस्टेबल या प्रॉब्लम में इंसान को तभी ट्रीट कर पाएगा ना व्हेन ही हिमसेल्फ इज मेंटली हेल्दी। इनफैक्ट साइकोलॉजी में सजेस्ट करा जाता है दैट इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक योर सेल्फ, या सपोज आई एम फेसिंग माई ओन इश्यूज, आज मेरा खुद की किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, तो आई शुड ट्रीट यू इन दैट सिचुएशन, बिकॉज मेरी उस टाइम पे जो थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग को भी इफेक्ट कर सकती है। ओके, psychiatrists are the ones who give medicines. Psychologists are same as psychiatrists. See, psychiatrist and a psychologist are different. Psychiatrist वो होता है जो आपको medicines देता है, और psychologist वो होता है जो आपको therapy देता है। अब से फॉर एग्जाम्पल आपको डिप्रेशन हुआ है, तो साइकेट्रिस्ट के पास आप जाओगे, वो दवाई आपको ऐसे लिख के दे देगा, वो दवाई आपको ले लेनी होती है। बट डिप्रेशन एक्चुअली में जब तक तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसके लिए प्रॉपर चेंजेस ना करो लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिर से और अच्छे से समझें तो, अगर आपको डायबिटीज हो गया, सपोज आप डॉक्टर के पास गए, अपने डायबिटीज की मेडिसिन ले ली, ठीक है, लेकिन आपने उस बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए, हाँ सपोज आप को डायबिटीज हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, आपने डायबिटीज की मेडिसिन तो ले ली, बट आपने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं करे, आपने मीठा खाना फिर भी बंद नहीं करा, आप फिर भी सुबह अनहेल्दी स्नैक्स लेते रहे, तो आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी ना। वो तब तक सही नहीं होगी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज वहां से नहीं हटाओगे। तो साइकोलॉजिस्ट इज द वन जो एक प्रॉब्लम से डील करने में आपकी हेल्प करता है, और साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे देता है। साइकोलॉजिस्ट स्टडी ब्रेन, साइकोलॉजिस्ट डू स्टडी ब्रेन, हम ब्रेन की भी स्टडी करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट आर मोर फोकस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड। रिमेंबर, माइंड और ब्रेन आर डिफरेंट। ब्रेन इज समथिंग दैट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ब्रेन के पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस, ऑसिपिटल लोब एक्सेट्रा, जो फिजिकल जो हमें दिखता है यूजुअली फोटोज में, दैट इज आवर ब्रेन। माइंड इज मोर the processes that are done by our brain, that is thinking, imagining, etc.